Good morning, students. So let's continue our chapter number 4 of chemistry, that is material, metals and non-metals. Yesterday we discussed the physical properties of metals and non-metals. So today let's differentiate between metals and non-metals on the basis of physical properties which we have discussed yesterday. First is metals, they are generally hard and shiny. Metals क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, शाइनी. जब whereas on the other hand non metals are generally soft and dull. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड डिफरेंस इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए जो वायर्स होती हैं या जो हीटिंग रोड्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर, वो हीट को पास नहीं होने देते. थर्ड पॉइंट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, थर्स आर मेलिएबल. Metals are malleable because they can be changed into the thin sheets. वो पतली शीट्स में चेंज हो सकते हैं. They cannot be on the other hand non-metals cannot be beaten into the thin sheets, thus they are non-malleable. फोर्थ पॉइंट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. उनको हम पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं मेटल्स को. सो दे आर डक्टाइल. On the other hand, non-metals they cannot be drawn into the thin wires, so thus are not ductile. Fifth point is most of the metals produce ringing sound, thus are sonorous. Sonorous जो मेटल्स होते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से उनको हिट करते हैं तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड. जैसे इलेक्ट्रिक बेल में मेटल की बनी होती है, वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, अगर हम उसको हैमर से हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड. फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ नॉन मेटल इज दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, थर्स आर नॉट स्नोरस. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्नोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते. Examples of metals are iron, copper, aluminium. And the examples of non-metals are sulfur, oxygen, carbon, etc. Next we discussed about the chemicals properties of metals and non-metals. Chemicals means internal properties of metals and non-metals. In this we will study the reaction of metals and non-metals with various substances. So the first chemical properties is the reaction of metals and non-metals with oxygen. Metals और non-metals अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है. When metals react with oxygen, जब मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स. यू कैन सी द रिएक्शन. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड्स. मेटल प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट इज मेटल ऑक्साइड. if you want to check the nature of the substances whether it's acidic or basic, जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना है अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है, and to check this we use litmus paper test. Metal oxides turns red litmus paper into blue, and the substances which turns red litmus paper into blue are called basic in nature. So therefore metal oxides are basic in nature because metal oxides turns red litmus paper into blue. एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है एक मेटल है प्लस ऑक्सीजन. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड.
So when we burn magnesium ribbon in the presence of air in which oxygen is present, magnesium oxide is formed. This is the reaction Mg. Mg means magnesium, O2 oxygen, and the product is MgO, magnesium oxide. Magnesium oxide turns red litmus paper into blue, thus it is basic in nature. Another example is rusting of iron. Iron Fe plus oxygen O2 plus water, and the result is ferric oxide rust. The formula of ferric oxide is Fe2O3XH2O. सो आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, और जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। आपने देखा होगा अगर हम एक फ्रेश आयरन न्यू आयरन पीस को अगर हम बाहर रख देते हैं, मतलब उसमें एयर में, और एयर के मॉइस्चर में वाटर भी होता है, एयर में मॉइस्चर भी होता है, वाटर भी होता है। अगर वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते ही आयरन के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ब्राउन से कलर की, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है जिसको हम क्या कहेंगे, रस्ट। सो ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो जितने भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। नाउ हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। यू कैन सी द रिएक्शन नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एंड वट इज़ द नेचर ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, रेड में। थस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर because substances which changes blue litmus paper into red are acidic in nature. For example, sulfur. Sulfur is a non-metal plus oxygen to form sulfur dioxide, which is a gas. S plus O2 and the product is SO2, sulfur dioxide. It is a gas. When we dissolve gas in water, अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ये क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है और क्या फॉर्म्ड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स। एंड ये जो सल्फ्यूरिक एसिड्स है ये टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अनदर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन इज अ नॉन मेटल, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। So today's homework is write and learn following question in notebook. Question is differentiate between metals and non-metals on the basis of physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करना है। आंसर इज वन साइड इज मेटल्स एंड द अदर साइड इज नॉन मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर जनरली हार्ड एंड शाइनी, and first point of non-metals is they are generally soft and dull. Second point is metals are good conductor of heat and electricity. Second point of non-metal is non-metals are poor conductor of heat and electricity.
Third point is they can be beaten into the thin sheets, thus are malleable. Third point of non-metals is they cannot be beaten into thin sheets, thus they are non-malleable. Fourth point is they can be drawn into thin wire, thus are ductile. They cannot be drawn into thin wire, so thus are not ductile. Fifth point is most of the metals produce ringing sounds, thus are sonorous. Fifth point of non-metals is they do not produce ringing sound, thus are not sonorous. Sixth point is examples of non-metals are iron, copper, aluminium. Examples of non-metals are sulfur, oxygen, carbon, etc. You have also revised chemical properties of metals and non-metals. Reaction of metals and non-metals with oxygen. Thank you.